giving you an inside view of the galleries of Rashtrapati Bhavan. Interesting to know that there are 2.5 kilometers of corridors in Rashtrapati Bhavan. It always be ready to work. All of us with full devotion and dedication to live up to the trust we all have. In architecture, material influences the expression royal, regal, splendid, without being overbearing or overwhelming. The sandstone pink and cream combination used gives a feeling of space and dimension, new meaning. Beautifully synced together, keeping Delhi's climate in mind. We are very blessed to have a lovely light breeze blowing here in the national capital. प्रांगण में समारोहिक और औपचारिक गतिविधियां जारी हैं। राष्ट्रपति भवन का प्रांगण, राष्ट्रपति भवन में कुल 227 खंबे हैं और उसका प्रांगण अंग्रेजी के अक्षर टी के आकार का है। मुख्य द्वार से भीतर तक दोनों ओर हरियाली और नहर है, फव्वारे हैं और यहाँ प्रांगण की लाल बजरी कालीन की तरह चमकती हुई लगती है। प्रांगण के ठीक सामने जो गुंबद है वही दरबार हॉल का गुंबद, जो दूर से ही राष्ट्रपति भवन की पहचान। बलुआ पत्थर के बने खंभों के ऊपर चारों कोनों पर घंटियों को उकेरा गया है और भव्य और शानदार इमारत राष्ट्रपति भवन, देश के प्रथम नागरिक का आधिकारिक निवास। The work of democracy is hard, the progress of democracy is uneven, and the only path of democracy is through inclusion. Today we walk the talk of inclusion, diversity and possibilities. As Srimati Draupadi Murmu will take oath as India's 15th President. As the first tribal woman President of India, Srimati Murmu has not only made her family, her tribe or her well-wishers proud, she's ensured that every Indian's heart, irrespective of origin or background, beats to the tune of the uplifting rhythm of pride, applause and joy. We belong to a country that breaks stereotypes, that raises eyebrows in surprise, and that believes in raising the bar for innovating, adapting and coping. बहुत सी बातें जो लोगों को आश्चर्य में डाल सकती हैं, लोगों को अविश्वसनीय लगे, भारतीय लोकतंत्र ऐसा करता रहता है और जिसमें ताज़ा उदाहरण हमारे देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का है। साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली और उसके बाद देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचकर उन्होंने करोड़ों करोड़ों मन को प्रेरित किया है और भविष्य में ये संदेश भी दिया है उन्होंने कि संघर्षों से जूझना है, लड़ना है और आगे बढ़ना है। The President's bodyguard here, their commandant, the first address of the 15th Colonel President. Anup Tiwari,
The second in command, Lieutenant Colonel Ramakant Yadav. राष्ट्रपति अंगरक्षकों की रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है और इस रेजिमेंट की स्थापना सन 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। सबसे पहले इसे द गार्ड ऑफ मुगल्स कहा गया था, लेकिन बाद में इसे अनेक नाम दिए गए। इस रेजिमेंट का गठन एक विशिष्ट घुड़सवार यूनिट के रूप में हुआ। स्वतंत्रता के बाद कई बार राष्ट्रपति अंगरक्षक ने अनेक युद्ध में अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया। राष्ट्रपति अंगरक्षक के सैनिक समारोहिक औपचारिकताओं में दक्ष हैं। वे प्रशिक्षित घुड़सवार और कुशल टैंक चालक भी हैं। The President's bodyguard on magnificent dark bay and bay-colored mounts. And in fact, the guards are riding steeds that are the tallest held by any mounted unit in the country, at a minimum of 15.5 hands, and these magnificent horses are very well looked after by the 44 Military Veterinary Hospital. A unique, distinct regiment. The personnel are handpicked, all of them at least 6 feet tall. And of course, besides performing ceremonial duties for the President, the officers and men of the bodyguards are trained horsemen, paratroopers and tanksmen. Chushul in 1962, in the Western Theatre in 1965, and in Operation Pavan in Sri Lanka in 1988. They've all seen action there. देश में दूसरी बार सर्वोच्च पद पर महिला आसीन हुई है। कई मायनों में आज हमने इतिहास को बनते देखा है। Fluttering high, indicating that the President is in Rashtrapati Bhavan in residence. उन्होंने नई भारत की नई तस्वीर का जिक्र किया और कहा कि equality, freedom, justice, pluralism, tolerance, respect, participation. The list of values that a democracy stands for include that which has been stated by earlier generations and also those which evolve as time goes by. To keep up with the times, to yet bring in tradition so that the past and the future are connected by the present. That is a legacy we leave behind. नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का जीवन महिलाओं और बालिकाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है। ज्यादातर समाजों में हमने देखा है कि लिंग भेद होता है, बेटा बेटी में भेद किया जाता है और ऐसे में बालिकाओं के सामने, महिलाओं के सामने संघर्ष और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने बालिका विकास के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें बेटियों को बचाने के लिए बेटियों को बचाओ और इसी के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, सीबीएसई की उड़ान योजना, लड़कियों के लिए मुफ्त या राज सहायता प्राप्त शिक्षा, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में महिलाओं के लिए आरक्षण, माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रेरित करने की राष्ट्रीय योजना। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है वो ये कि जितने भी अवसर हैं उसमें कहीं कोई भेदभाव ना हो, समानता हो, लड़कों के बराबर उन्हें भी आगे बढ़ने के वो सभी अवसर प्राप्त हों और ये सुनिश्चित हो घर से। वो समाज जब भेद नहीं करता, जब बेटा और बेटी समान हैं, तब वो समाज पूरी तरह से विकसित होता है, विकास करता है। ये ऐसी कहानियां हैं जो प्रेरणादायी हैं और जिनकी मिसालें आने वाली पीढ़ियां भी देंगी।
In a short while from now, we shall see the arrival here at the forecourt of the President, Shri Ramnath Kovind, and the President-elect, Srimati Draupadi Murmu. As the constitutional head of the country, the President is de facto also the first citizen of India, playing a significant role of the head of state of India. The President is also the supreme commander of the 3 Indian armed forces. It is laid down in our constitution that the President has the responsibility and the authority to accord with, to defend and protect the Constitution and its rule of law. The Constitution, which is the basis of our democracy. The Constitution which shows us the way whenever we tend to get lost. The Constitution which ensures the values of dignity for all, equality, equity, brotherhood, fraternity, and justice. राष्ट्रपति अंगरक्षक मुस्तैद राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में दरबार हॉल के सामने ये प्रांगण की मुख्य सीढ़ियां, और अब से कुछ देर में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और निवर्तमान राष्ट्रपति दोनों यहां पधारेंगे। उसके बाद उन्हें राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाएगा और फिर वो प्रस्थान करेंगे संसद भवन के केंद्रीय कक्ष की ओर। ये दृश्य श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ले ली है और ओर से, और यहाँ देश की दरबार 15वीं राष्ट्रपति में शपथ ग्रहण के बाद वर्तमान राष्ट्रपति के केंद्रीय कक्ष से नवनिर्वाचित राष्ट्रपति उनका प्रस्थान उनके आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन की ओर, उनका काफिला संसद भवन से प्रस्थान करता हुआ। The President of India, Shri Ramnath Kovind, and the President-elect of India, Srimati Draupadi Murmu, going past 25 जुलाई 2022 का दिन इतिहास में दर्ज होता हुआ 5th century BC Gupta period. देश के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने 25 जुलाई 1977 को शपथ ली थी। उसके बाद हर राष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल पूरा किया है और 25 जुलाई को ही शपथ ली है। राष्ट्रपति अंगरक्षक राष्ट्रपति के काफिले के आगे आगे और उनके साथ नई राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अपने आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन की ओर। ये काफिला विजय चौक से अब रायसीना पहाड़ी की ओर बढ़ता हुआ। Srimati Draupadi Murmu is now the 15th President of the Republic of India. She now sits as the constitutional head of the nation. As the President's bodyguard, escort the President's carcade towards Rashtrapati Bhavan. Personnel of the armed forces lined on either side of the path, going up the Raisina hill, salute and present arms. It's a special day moving towards the dais for the national salute, not only because of Srimati Murmu's selection, a great message for democracy in itself.
governance, the Parliament House, all standing silent witness to this special moment. President Ramnath Kovind sitting in his vehicle and accompanying him the President-elect Srimati Draupadi Murmu as they make their way towards Parliament House. राष्ट्रपति भवन से नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और निवर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद प्रस्थान कर रहे हैं संसद भवन के और केंद्रीय कक्ष की ओर। पारंपरिक के साथ भव्यता के साथ राष्ट्रपति अंगरक्षक इन कर्तव्यों का निर्वाह किया जाता है। एक नया अध्याय विशाल भव्य राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से ये काफिला अब धीरे धीरे राष्ट्रपति भवन के मुख्य द्वार की राष्ट्रपति बढ़ता हुआ। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और उनके साथ अब पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद भारत के लोकतंत्र का राष्ट्रपति एक महत्वपूर्ण अवसर है। खास मौका ये चौक से देश की 15वीं राष्ट्रपति अब से कुछ ही देर में शपथ लेंगी। सेवाओं के पर्सनल तैनात उन्हें सम्मान देते हुए रायसीना पहाड़ी पर बना विशाल और भव्य राष्ट्रपति भवन जिसकी नींव सन 1911 में रखी गई थी और इसी के जयपुर कॉलम के नजदीक से गुजर रहा है ये काफिला रायसीना जो अग्रसर है संसद भवन की ओर। मुख्य द्वार जो The President's limousine is escorted by the President's bodyguard proceeding to gate number 5 of Parliament House. In fact, the 6th Sikh will turn out guard at the southern side of the Jaipur column for departure. We can see the commanding officer, Colonel S.K. Mohanty, and the pathway leading up to the forecourt of Rashtrapati Bhavan. Personnel from the three services with high positions, and we showed you shots of this earlier, have lined up the path with arms on the route and will present arms as its companion, a dignitary's pass by responsibility. The working on the advice of the elected government, the President of India भवन की भव्यता is the protector दोनों of ओर the नहर और Constitution. फव्वारे और काफिला धीरे धीरे मुख्य द्वार की ओर बढ़ता हुआ As our new president will hold विशाल लोहे का मुख्य द्वार जो विशेष अवसरों पर खोला जाता है a और आज responsibility, ऐसा ही विशेष अवसर है to ensure जब भारत की 15वीं राष्ट्रपति the last mile, the अब last से कुछ ही देर person में शपथ is ग्रहण करेंगी। connected, interconnected, वर्तमान and राष्ट्रपति belongs to a श्री nation, रामनाथ कोविंद का called कार्यकाल India. पूरा हो रहा है। a nation that is progressing. The last person has an equal share in the growth, और ये काफिला prosperity, धीरे-धीरे progress of the nation to रायसीना actually पहाड़ी make से democracy अब विजय truly चौक की ओर बढ़ता हुआ वहां से बाईं ओर अपने कार्यकाल के दौरान संसद भवन है। ऐसे कई क्षण होते हैं, गंतव्य होते हैं जब राष्ट्रपति की काफिले बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और राष्ट्रपति श्रीमती It's a very poignant moment, reflective moment for सामाजिक जीवन President Ramnath Kovind, अपना खुद का जीवन and of course सादा और जमीन से उनका जुड़ाव a joyous and celebratory moment for Srimati साधारण Murmu, व्यक्ति के दर्द को भी but उसके also संघर्ष को भी knowing that she उसकी has a task आकांक्षाओं को ahead भी and to serve the country to the best भविष्य of के her उनके ability. निर्णयों के लिए उनका ये अनुभव The guard and बहुत ही personnel सार्थक from the three services lining up the प्रासंगिक होगा। path with the fundamental responsibility of maintaining the integrity of the Constitution of India. The President of the largest democracy in the world is vested with specific legislative and judicial and financial powers, among many others, to ensure that the sanctity of the Constitution is upheld. And Indian democracy is the result of the great gift our founding fathers gave us
In fact, the gift of a constitution that, other than being the longest written constitution in the world, holds in its embrace the firmness to provide us solid and strong roots, and the liberalism to give us wings to grow for governor and change. And as we await the swearing-in ceremony of India's 15th president to take place, Srimati Murmu will soon hold with her the sacred responsibility of maintaining the integrity of this constitution as the new president of India. ये काफिला रायसीना पहाड़ी से विजय चौक की ओर बढ़ता हुआ और दोनों ओर तीनों सेनाओं के पर्सनल पूरे मार्ग में बहुत ही खास अवसर। देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद संवैधानिक प्रमुख होते हैं, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं और देश के प्रथम नागरिक होते हैं। बहुत ही खास अवसर जब राष्ट्रपति श्री द्रौपदी एक राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो रहा है और नई राष्ट्रपति इस पद की जिम्मेदारी अब से कुछ देर में ग्रहण करेंगे। Invariably is, as a form of mainstream dialogue, a recurring reference to the values a democratic nation rests on, and moving these values from paper to people is the true test of democratic governance. Srimati Murmu, as she will shortly take oath today, will be wanting to ensure that she centers her tenure around these values and principles. The values and principles that she has always held dear, in sync with the form of governance the President of India, Srimati, as its constitutional head. Principles of action that sustain society and democracy. Former President to be stable and successful at both the political and social levels. And it is because the scope of these often are justified and vehemently defended values is so far-reaching that they are debated and discussed at the public level. North Court की ओर बढ़ता हुआ the President's limousine on its way to gate number 5. राष्ट्रपति कमेटी रूम की तरफ जाएंगे। जन कल्याण की यात्रा सतत निरंतर चलती रहती है। भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बेहद शानदार दिन, जहां सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर किस तरीके से हस्तांतरण होता है, ये इसके हम सब गवाह बन रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं। और ये हमारे लोकतंत्र की, हमारी लोकतांत्रिक विरासत की ये खूबसूरत तस्वीर। संसद भवन के निकट पहुंचता हुआ ये काफिला स्वागत कर रहा है। कुछ देर में नए राष्ट्रपति का श्रीमती संसद भवन के गेट नंबर 5 पर पहुंचेगा के साथ पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। The President moves towards the committee room and also her new office and her new residence. राष्ट्रपति भवन के इस भव्य गलियारे पर पूर्व राष्ट्रपतियों के चित्र, कावेरी जो कमेटी रूम है उसको प्रस्थान, संसद भवन में दाखिल होता हुआ ये काफिला। This magnificent building, sandstone, pink and cream, the Rashtrapati Bhavan has a fabulous history of its own.
Welcome to Rashtrapati Bhavan, the office and home of the President of India. Completed in 1929, Rashtrapati Bhavan, designed by Edwin Lutyens and Herbert Baker, is one of the most magnificent presidential palaces ever built. The erstwhile symbol of colonial power and imperial domination is today representative of Indian democracy, of its inclusiveness, plurality and secularism. This is not just the residence of the constitutional head of the world's largest democracy, but also in terms of area, the largest residence of a head of state anywhere in the world. The office of the President is called the Study. This is the formal meeting place for the President where he receives his guests and visitors. Murals by eminent artist Sukumar Bose inspired the look and color scheme of the Study. Gifts received by various presidents adorn the Study. The Study opens into the morning room. The President meets dignitaries here. Each room in the Rashtrapati Bhavan stands witness to history. To restore these to their former glory, the restoration team had to rearrange available resources in view of the heritage nature of the rooms. Work was undertaken in each room to revive its distinct character, just like the way they were originally meant to be. Fascinating works of art by reputed Indian and European artists were restored to add character to the walls. Darbar Hall is where the first government of independent India was sworn in. Justice of India, Mr. N.V. Ramana, Lok Sabha Speaker, Om Birla as well. Lutyens designed new viceregal thrones for the Darbar Hall to replace those from Government House in Calcutta. With new flags, paintings and a warm look, Darbar Hall has regained its past grandeur and is now used for hosting civil and defense investiture ceremonies and for conferment of other national and international awards. Next to Darbar Hall is the library. It is also described as the daughter of Darbar Hall. Besides priceless publications from the 19th century onwards, it also has more than 2,000 rare books. They are now being digitized and preserved for posterity. Ashoka Hall was originally built as a state ballroom. It is now the venue for accepting credentials of foreign envoys and other formal functions. Embellishments on the ceilings, carpets and chandeliers reveal the stately splendor of the room.
new age president's estate is gearing up to present itself as a prime tourist attraction with 3 distinct tourist circuits: the main building, gardens and museums. From the Rashtrapati Bhavan to the Almost 60% of the president's estate, that is more than 190 acres, is green, comprising dense foliage and rare flora and fauna. Besides the spiritual, herbal, cactus and nakshatra gardens, it includes the sprawling Mughal gardens. Rashtrapati Bhavan, declared a Grade 1 heritage structure in 2009, is an iconic living heritage. कुछ ही पलों में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ लेंगी। आजादी के बाद जन्म लेने वाली वो पहली राष्ट्रपति होंगी। साथ ही दूसरी महिला राष्ट्रपति और जनजातीय समुदाय से राष्ट्रपति पद तक का सफर तय करने वाली पहली महिला। तू ना रुकेगा कभी, तू ना झुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। जी हाँ, आपने देखा कि किस तरह से भारत की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ली और उनका ये जो सफर है वो संघर्ष से शिखर तक, यानी रायरंगपुर से सीधा रायसीना हिल्स तक कैसे अब राय तब्दील करेगा, तमाम बड़ी बातें उन्होंने आज ट्रेड करो। हमारा किंग का ये ऑर्डर है कि जो भी तुम्हारे इस महान यात्रा पे हर्डल करे उसको पनिश किया जाए। ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। ये हमारे उस अतीत को दर्शाता है जिसके आधार पर हम आज स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। मैंने सुना है अंग्रेज हमारी प्रजा पे बहुत अत्याचार कर रहे हैं। आप चिंता न करें, इस अत्याचार को हम अवश्य रोकेंगे। 1741 में मार्तंड वर्मा ने, जो ट्रैवनकोर के थे, वो कोलाचल का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, उसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी को किस प्रकार से पराजित किया था, कितनी योजना बनाई थी। वो बहुत ही खतरनाक है महाराज। ऐसे पहले कि वो आपके लिए खतरा बन जाए, हमें आतम वर्मा को खत्म करना होगा। वचन दो मुझे, इन डच्चों का तुम वो हासिल करोगे ये त्रावणकोर की सीमाएं छोड़कर ही नहीं बल्कि भारतवर्ष की सीमाओं से भी हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगे। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। देश को विदेशियों के चंगुल से बचाने के लिए केवल पुरुषों ने ही नहीं, हमारे देश की नारियों ने भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया। इस सिलसिले में अगर कोई एक नाम लिया जाए तो रानी अब्बक्का का। उल्लाल की रानी हूं मैं और मैं वही करूंगी जो मेरी प्रजा की हित में होगा। तो इस प्रकार का जो इतिहास है, जिनको हम अनकही कहानियां कहते हैं, ऐसी कहानियों को लेकर के ये श्रृंखला लोगों के तक पहुंचाना चाहती है भारतीय स्वत्व की, स्वाधीनता की और स्वराज के इतिहास से। भारत के संविधान अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी। के निर्वाचन का अधीक्षण यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट होती है, जो कभी-कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रा बेहद शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक मार्ग से, चुनाव के माध्यम से एक तरह से सत्ता का हस्तांतरण करना हमने देखा
जब राष्ट्रपति भवन से निकले तो संविधान पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने एक तरह से जो मानवंदना है उसका स्वीकार किया, और जब फिर से राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो वही मानवंदना का स्वीकार द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। ये जो स्मूथ ट्रांजिशन है वो हमारी संवैधानिक और लोकतांत्रिक शक्ति का प्रतीक है, और इसका जो सामाजिक आर्थिक रूप में संदेश है स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा करते हुए ये तो बेहद महत्वपूर्ण है ही। लेकिन मैं मानता हूँ कि कुल मिलाकर यदि हम देखते हैं तो लगातार 10 राष्ट्रपति इस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से इस पद पर विराजमान होना, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सीधे नहीं थे, उसके बाद स्वतंत्रता के बाद जन्मे हैं, ऐसे देश का नेतृत्व करना और फिर भी इस अमृत काल के संदर्भ में अपनी एक संवेदना, एक चेतना समाज के, देश के मन में सतत जागृत रखने की एक विचार सतत रखते हुए ये काम करना, मैं मानता हूँ भारत के लोकतंत्र की एक बड़ी तस्वीर आज हमको इस रूप में देखने को मिली। क्लास मॉनिटर से तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर, और सबसे अहम ये है महिला होने के नाते जब हम आधी आबादी के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं वो तो है, लेकिन उन कई सपनों को, क्योंकि लगातार हमने जब तक ये शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ था और जब उनके लिए वोट डले, जब मतगणना हुई, तो हमने कई रिपोर्ट्स उनके गांव यानी रायरंगपुर से वहाँ छोटी छोटी बच्चियां स्कूल में पढ़ाती थी, उनकी आंखों में जो सपने थे, क्योंकि वो खुद मान रही थी वो पहली थी जो कॉलेज गई। तो आप यहाँ से देखिए कि अगर उन सपनों को प्रफुल्लित कर किस तरह से एक स्वच्छंद आकाश देना है, क्योंकि घर की चार दीवारी में अब नहीं है वो कैद, वो उड़ना चाहती है। जाने कौन बने आगे जाके द्रौपदी मुर्मू, यही बात वो समाज को समझाना चाहती है। संविधान और विधि का देखिए, हमने यदि जिस दिन ये सारा चुनाव का काउंटिंग हुआ, जब वोट तो पहले ही पड़ गए थे, लेकिन 20 तारीख को जिस तरह से काउंटिंग हुआ और 3 बजे के बाद जब उनकी लीड एक तरह से कंफर्म हो गई और सेकंड राउंड के खत्म होते होते जब ये तय हो गया कि 50% से ज़्यादा जो आवश्यक इलेक्टोरल कॉलेज के वोट है वो उन्होंने प्राप्त कर लिए हैं, तो भारत के आसपास के देशों में भी जनजातीय क्षेत्र में जिस तरह का उत्सव का माहौल था वो एक तरह से एक संदेश था। वो संदेश किस लिए था हमको ठीक से समझना चाहिए। देखिए, भारत में यदि हम देखते हैं इतिहास के रूप में तो हमको ये समझना चाहिए कि भारत में जनजाति, गांव में रहने वाले और नगरों में रहने वाले, इनका एक आपस में परस्पर पूरक जीवन का एक संबंध था। अपने जल जंगल के प्रति बेहद संवेदनशील ऐसा ये समाज, अपने परंपराओं के प्रति संवेदनशील, और बाकी समाज भी उन संवेदनाओं को एक तरह से सम्मानित करता हुआ। इस समाज ने जितना विदेशी आक्रांताओं के विरोध में संघर्ष किया उतना किसी ने नहीं किया। हम क्योंकि स्वयं राष्ट्रपति जी संथाल समुदाय से आती है, संथालों की एक तरह से जो क्रांति थी उसने एक तरीके से भव्य ब्रिटिश साम्राज्य को एक तरह से झुका दिया था, और इस कारण से ब्रिटिशों ने फिर एक जिसको हम कह सकते हैं कि राजनैतिक और कानूनी दांवपेच खेला, इनको देश की मुख्य धारा से ही बाहर कर दिया। सारे प्रक्रियाओं से एक तरह से इनको दूर रखा गया। स्वतंत्रता के बाद भी आज भी हम उसका अनुभव करते हैं कि इन जनजाति क्षेत्र में हमने देखा पहले तेलंगाना में, फिर बंगाल में नक्सलबाड़ी में, किस तरह से इस सारी प्रक्रिया का फ़ायदा लेते हुए एक अतिवादी वामपंथी विचारों के आधार पर एक आतंकवादी विचार को भी वहाँ पे रोकने की कोशिश की गई। उससे हम निकलते हुए आज हम देख रहे हैं कि जनजाति क्षेत्र से आकर एक महिला जिसने
न केवल रायरंगपुर जैसे स्थान से निकलकर कॉलेज पूरा किया, सरकारी स्तर पर पहली बार कोई जनजाति क्षेत्र से इस तरह से पावर और इरिगेशन डिपार्टमेंट में नौकरी के रूप में वो उस इलाके से पहली सरकारी नौकरी करने वाली इस तरीके से रही। उसके बाद शिक्षिका के रूप में जो अरबिंदो स्कूल का उन्होंने अपने भाषण में जिक्र भी किया, और ये भी सौभाग्य की बात है कि श्री अरबिंदो की भी 150वीं जन्म जयंती का ये वर्ष है, और उन्होंने कहा कि श्री अरबिंदो के शिक्षा विषयक विचार जो है उनको हमेशा प्रेरित करते हैं। और उस सारी प्रक्रिया के बाद, व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष के बाद वो सार्वजनिक जीवन में आती है, और पिछले 25 वर्ष के लगातार अपने दम पर, कोई ना डायनेस्टिक बैकग्राउंड है, ना पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, ऐसे में एक सामाजिक संदेश देते हुए देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान होती है। मुझे लगता है इस रूप में यदि हम उनके जीवन को देखते हैं तो हमको इन सारे उत्सव मनाते हुए जनजातीय क्षेत्र का महत्व समझना है। एक और उत्सव का जो कथन है वो इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से बापू ने कहा था कि वो दिन जरूर आएगा भविष्य में जब मैं खुद देखना चाहूँगा कि एक आदिवासी महिला जो है आदिवासी समाज से कोई इतने बड़े पद पर विराजमान है। और आज में इस कार्यकाल की शुरुआत द्रौपदी मुर्मू जी जो कि राष्ट्रपति हैं, उन्होंने शपथ लेने से पहले जब बापू को श्रद्धांजलि देकर ये लोकतंत्र कितना सशक्त, कितना आत्मसात, इसकी पाचन शक्ति कितनी ज्यादा मजबूत है, ये इन्हीं तस्वीरों से और इन्हीं हम कह सकते हैं जिस तरह से जो मिथक तोड़े गए हैं कि भाई हम ये शायद स्वप्न नहीं सोच सकते थे कि कोई इस जनजातीय समाज से उठकर इस सर्वोच्च पद तक आएगा। तो ये कहीं ना कहीं हम अपने लोकतंत्र को भी मैच्योर होते हुए देख रहे हैं आने वाले मेरे लिए इस नए निश्चित रूप से निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत जो मूलतः अंत्योदय की संकल्पना थी। राष्ट्रपति के रूप में बहुत लोग हैं ना चर्चा में भी आया, जब राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी तब भी ये चर्चा में आया। ठीक है, संवैधानिक रूप की एक संवैधानिक परंपराओं की एक जिसको हम कह सकते हैं फ्रेमवर्क में हम बंधे हुए हैं, जिसमें ये तय है कि जो निर्वाचित लोक प्रतिनिधियों द्वारा चुनी गई सरकार के एक तरह से सलाह करते हुए राष्ट्रपति द्वारा ये सारा काज होगा। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हुए भी ये रबर स्टैम्प नहीं है, ये केवल सिंबलिक नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा सब्सटेंस है। एक तरफ हम देखते हैं कि मुझे ये जो लोकसभा है जिसको एक तरह से पूरे जन का विश्वास प्राप्त है, ऐसे लोगों की, ऐसे प्रतिनिधियों के द्वारा एक कैबिनेट चुनी जाती है जो प्रेसिडेंट्स कैबिनेट कहलाती है, और उसका जो प्रमुख है, मुखिया है, जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है। अब बात देखिए, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो ये सब तो वोट करते ही है, भारत के सारे विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य है वो भी वोट करते हैं। और इस कारण से हमारे यहाँ पे बहुत लोगों को गणतंत्र और लोकतंत्र में अंतर समझ में नहीं आता। इस अमृतकाल में लोकतंत्र में तो लोक निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा सरकार चलती है, लेकिन ये होते हुए भी ब्रिटेन जो है वो गणतंत्र नहीं है। इसका कारण ये है कि वहाँ पे अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा निर्वाचित नहीं है। भारत में क्योंकि हमने एक तरह से हमने रिपब्लिक, गणतंत्र के रूप में हमने एक मॉडल स्वीकार किया है, ऐसे में लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा, सारे निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा, चाहे वो राज्य स्तर के हो चाहे वो केंद्र स्तर के हो, उनके द्वारा 64% वोट प्राप्त करके द्रौपदी मुर्मू जो सामान्य परिवार से आती है और सारे संघर्ष के बाद यहाँ तक पहुँचती है, ये जो गणतंत्र का मैसेज है, ये केवल लोकतंत्र का मैसेज नहीं है, गणतंत्र का, सर्वसामान्य व्यक्ति सर्वोच्च पद पर, ये जो
सफर है। इस रूप में मुझे लगता है कि जो अंत्योदय की बात आपने कही, जो लास्ट मैन स्टैंडिंग, कोई भी कानून बनाते हुए, कोई भी नीतिगत विचार करते हुए, क्या वो जो आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसके बारे में, उसको ध्यान में रखते हुए, मुझे लगता है जब ऐसे समाज से, ऐसे जनजाति क्षेत्र से जब सर्वोच्च पद पर व्यक्ति आ जाती है तो नीतिगत विषयों में अपने आप ही सर्वप्रथम जो ध्यान में रहता है वो अंतिम कतार में खड़ा हुआ व्यक्ति रहता है। ये मैं मानता हूँ कि ये भारत का लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक प्रक्रिया का सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी बाबा साहब अम्बेडकर ने बात की थी, जिसका सपना गांधी जी ने देखा था, दीनदयाल जी जिसको अंत्योदय की बात कहते थे, एकात्म मानव दर्शन की बात कहते थे, मैं मानता हूँ इन सब का एक तरीके से प्रतिनिधित्व के रूप में आज हमें श्रीमती सर्वोच्च संविधानिक पद तक पहुंचा। शपथ ग्रहण करते हैं। और अगर उनके व्यक्तित्व का जिक्र किया जाए तो लगातार हम चर्चाओं में देख रहे हैं, अखबारों में देख रहे हैं, सहज, सरल, सौम्य, स्वाभाविक, सशक्त, और इस तरह का व्यक्ति जब इस तरह के सर्वोच्च पद पर आसीन होता है तो ये जो बार बार कहा जा रहा है, हम क्योंकि भव्यता बहुत अहम है, जब हम राष्ट्रपति भवन की बात करते हैं हर किसी को आकर्षित करते हैं क्योंकि वो जमीन से जुड़ा है और ज़मीन की सच्चाइयों से वाकिफ है। तो ये जो इस तरह का आकर्षण है वो उसको बहुत ज़्यादा डावाडोल नहीं करता, उसके लिए ठीक है क्योंकि वो इन संघर्षों से निकलकर कह सकते हैं ना कि जितना ज़्यादा सोना तपता है तो उतना ज़्यादा कुंदन के रूप में निखर कर सामने आता है। तो इस तरह के व्यक्ति का इस तरह के पद पर आसीन होना अपने आप में आने वाले समाज के लिए, युवाओं के लिए एक उस तरह का ब्लूप्रिंट या रूपरेखा तैयार करता है जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है। जी, आज के हमने उनके भाषण में यदि हम देखते हैं तो जिन मुद्दों को उन्होंने स्पर्श किया और जिस भाषा में और जिस मैं कहूँगा कि उस आवाज में भी एक तरह से उन अनुभवों की सच्चाई दिखती है। बहुत लोगों को ये लगता है कि कितना अच्छा हिंदी में कम्युनिकेट, कितना अच्छा इंग्लिश में कम्युनिकेट, मुझे लगता है कि जो कह रहे हैं उसके पीछे का भाव कितना सामने वालों को पहुंचता है। तो वो हमने आज देखा राष्ट्रपति चुनाव के सारे इसके बाद हमने पहली बार उनको सार्वजनिक मंच पर भाषण करते हुए देखा और उसमें वो जो भाव दिखा वो भाव बड़ा महत्वपूर्ण है। देश के प्रति, युवाओं के प्रति कैसे सबको साथ लेकर चलना है, फिर उन्होंने आदिवासी समाज को लेकर भी जिक्र किया, यानी कि सर्वांगीण विकास की तरफ जिस तरह से हम जो भी भारतवासी हैं, मैं आप ये उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति इस तरह से पूरे सर्वांगीण विकास की बात करें, उसको लेकर उन्होंने अपने केंद्र बिंदु बड़े स्पष्ट तौर पर रखे। शैली कोई भी हो सकती है, भाव उनका बिल्कुल साफ, निश्चल और स्पष्ट। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि वो इतने संघर्ष से निकली है, जैसे मैंने कहा कि शिक्षा के लिए संघर्ष था, बिल्कुल अर्थार्जन के लिए संघर्ष था, व्यक्तिगत जीवन में अपने बच्चों को खोना, पति को खोना और फिर भी सार्वजनिक जीवन में सबके हित में डटे रहना, विधायक के रूप में अपना लोहा मनाना और सबसे अच्छे विधायक के रूप में एक तरह से पुरस्कृत होना, उसके बाद एक राज्य की महामहिम राज्यपाल के रूप में अपनी भूमिका निभाना। तो एक तरफ वो जमीन पर उनके पैर डटे रहे उस सच्चाई के साथ कि मैं कहाँ से आई हूँ, और दूसरी तरफ उन्होंने ये सारा एक तरह से लोकल लेवल पर काउंसिलर से लेकर राज्यपाल पद तक ये जो सारा सफर पूरा किया, उसके कारण उनको ये सारे चाहे संवैधानिक प्रोटोकॉल हो, चाहे उसके कारण आने वाले कुछ बंधन भी हो, इन सब के बारे में उनको बिल्कुल ठीक से जानकारी है। और इस कारण से राष्ट्रपति भवन का चाहे वो प्रोटोकॉल हो, चाहे वो सारे उसका हम कह सकते हैं कि सुविधाएं भी और एक तरह से उसका तामझाम भी एक तरीके से वो हो, लेकिन वो करते हुए भी
उनकी वो सादगी और उनके वो भावों के रूप में शब्दों से द्वारा आने वाली सच्चाई, ये दोनों कहीं पे भी बिल्कुल ही हिलती नहीं है। ये साफ आज दिखाई दिया और मुझे लगता है कि यही देखिए, क्योंकि वो पद के कारण, उस पद की गरिमा के कारण वो सुविधाएं और वो सारे प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन जब व्यक्ति ये ध्यान में रखता है कि ये पद जो है वो केवल एक माध्यम है संवैधानिक मेरे दायित्व को निर्वहन करने के लिए ये सारी सुविधाएं दी है, तब मुझे लगता है कि व्यक्ति का बैकग्राउंड जो है, व्यक्ति की जड़ें जो है, वो हमेशा उसको ये याद दिलाती रहती है कि जिस कुर्सी पर, जिस बड़े से एक तरीके से विश्व के सबसे बड़े, जिसको हम कह सकते हैं कि प्रतिष्ठित भी और एरिया में सबसे बड़े एक तरीके से भवनों में से भारत का राष्ट्रपति भवन है, तो वहाँ पे रहते हुए भी उन जड़ों के साथ अपने आप को जोड़ के रखना, मुझे लगता है कि द्रौपदी मुर्मू जैसी राष्ट्रपति पद पर पहुंचना, ये इन दोनों का एक तरीके से भारत के अंतिम छोर का, भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद से मिलने की, यानी ये जो हम कहते हैं कि आसमान और धरती कभी एक नहीं हो सकते, बड़ा क्लीशे सा है, लेकिन ये आज ये हमने होते हुए देखा। दूसरी अहम बात रसूल जी ने ये साफ तौर पर कही है कि भारत किस तरह से बहुत गौरवशाली आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चल पड़ा है, और उन्होंने कहा कि कैसे G20 की अध्यक्षता हम करने वाले हैं, उसका जिक्र उन्होंने किया, किस तरह से कोरोना काल में हमने काम किया, वो इस बात से भी बड़ी बात परिचित थी। तो कहीं ना कहीं किस तरह से भारत की जो विकास यात्रा है, जो अब पथ पर दौड़ रही है, न्यू इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, उस लिहाज से भी उन्होंने कहा कि ये भारत का जो हम अमृत काल बना रहे हैं, और अमृत काल में इस काल में उनको ये जिम्मेदारी मिली, उसको लेकर वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को देखिए, हम हिंदुस्तानियों ने सिंबलिकली या कोइंसिडेंस के रूप में कहे तो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप रोकना चाहूंगी, एक बार सीधे लिए चलते हैं आपको राष्ट्रपति भवन और देखते हैं कि किस तरह से वहाँ पर अभी गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी होने वाली है। आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले भारत ने कोरोना वैक्सीन की और देश की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन लड़ाई में भारत के लोगों ने जिस के प्रांगण में, जहां उनके स्वागत के लिए गण्यमान्य व्यक्ति पधारेंगे, हमारी बढ़ती हुई शक्ति और संवेदनशीलता का प्रतीक है। भारत ने इन मुश्किल हालात में न केवल The newly sworn in President of India, Srimati Draupadi Murmu, being greeted by former President Shri Ramnath Kovind, and now in a short while from now they will proceed to the forecourt of Rashtrapati Bhavan, where Srimati Murmu will inspect the guard of honor. G20 ग्रुप की मेजबानी भी करने जा रही है। A day for ceremony and protocol. इसमें दुनिया के A day for transition. भारत की अध्यक्षता में वैश्विक विषयों पर मंथन करेंगे। मुझे विश्वास है And a day of pride, hope, joy. A photo session, photo shoot उनसे आने वाले दशकों की दिशा तय होगी। New incumbent of the highest office in the country and the former incumbent. श्री अरबिंदो इंटीग्रल स्कूल में ऐतिहासिक तस्वीरें कार्य करने का अवसर मिला था। नए राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति श्री अरबिंदो जी की राष्ट्रपति भवन के कमेटी रूम कावेरी में जन्म जयंती मनाई जाएगी। शिक्षा के बारे में श्री अरबिंदो के विचारों ने मुझे निरंतर प्रेरित किया है। औपचारिकताओं का ये समारोह जन प्रतिनिधि के रूप में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए देश की प्रथम आदिवासी महिला ने देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर पदभार संभाल लिया है और इस महत्वपूर्ण घटना के महत्व और प्रभाव को
करीब से वर्तमान और भविष्य में जाना और समझा जाएगा। श्रद्धेय पटेल जी कहा करते थे कि देश के युवा जब आगे बढ़ते हैं तो वे सिर्फ अपने ही भाग्य नहीं बनाते। So we have cameras specially positioned inside Rashtrapati Bhavan and of course outside to bring you the detailing from within what is happening, and of course beautiful images of the glorious surroundings and the vistas around, the gathering of the dignitaries here. The 3 service chiefs are here, the Chief of Army Staff, General Manoj Pandey, the Air Chief Marshal V.R. Chaudhary, and the Naval Chief Admiral R. Hari Kumar. रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, उनके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, भारत ने जिस तरह महिला सशक्तिकरण के लिए निर्णय लिए, राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में अंतर सेना गारद, देश में एक नई शक्ति का संचार हुआ है। मैं चाहती हूँ कि हमारी सभी बहनें व बेटियां अधिक से अधिक सशक्त हो तथा वे देश के हर Awaiting the arrival of Prime Minister Narendra Modi, who shall be here shortly to congratulate मैं अपने देश के युवाओं से कहना Srimati Murmu कि आप न केवल on अपने her भविष्य का taking over निर्माण as कर the रहे हैं, बल्कि 15th President of India. भविष्य के भारत की नींव भी And here we see the arrival देश के राष्ट्रपति के of तौर पर his car मेरा cake. हमेशा आपको पूरा सहयोग रहेगा। गण्यमान्य व्यक्तियों का आगमन देवियों और कुछ ही देर में राष्ट्रपति भवन में होगा। प्रगतिशीलता का ये संसद भवन निरंतर आगे का बढ़ना दृश्य, होता है, लेकिन जहाँ साथ ही से अपने अतीत का ज्ञान भी गण्यमान्य व्यक्ति उतना ही आवश्यक है। राष्ट्रपति भवन की ओर प्रस्थान करते हुए सस्टेनेबल प्लैनेट की बात कर रहे हैं तो उसमें भारत की प्राचीन परंपरा, हमारे अतीत की सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की भूमिका और बढ़ जाती है। मेरा जन्म तो उस जनजातीय परंपरा से हुआ है। The circular Parliament Hall, we just saw images of that, the historic Vijay Chowk, here we are, the Raisina Hill, all having borne silent testimony to our history of how power has transitioned, about how mantles have been taken over and given away, हम प्रकृति से जरूरी संसाधन लेते हैं पर उतनी ही how decisions are taken on which the future of the nation depends, and they have been witness to all this over the years. संवेदनशीलता का आज वैश्विक अनिवार्यता बन गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है सभी गण्यमान्य व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र राष्ट्रपति में भवन विश्व का पहुंचकर मार्गदर्शक बन रहा है। देश की 15वीं राष्ट्रपति का अभिवादन करेंगे। देवियों और स्वजन, मैंने अपने अब तक के जीवन में जौन सेवा में अंतर्गात सेना तैनात है। जीवन की सार्थकता को अनुभव किया है। श्री जगन्नाथ क्षेत्र के एक प्रख्यात कवि भीम भोई जी की कविता की एक पंक्ति है, मो जीवन बचे नर के पड़ी था जगत उद्धार। And into service is Guard of Honor here station, right in the center of the forecourt. अर्थात अपने जीवन के हित और हित से बड़ा जगत कल्याण The के लिए gently कार्य tinkling करना। fountains on either जगत side of your कल्याण की screen, इसी भावना के साथ मैं आप सब adding to the विश्वास पर ceremonial खरा air, उतरने के लिए पूरी gentle निष्ठा tinkling और of लगन water से down, काम करने के लिए सदैव all तत्पर रहूं। a very, very आइए beautiful, serene हम and सभी gracious एकजुट होकर surrounding समर्पित भाव से as the frame कर्तव्य पथ पर of this आगे event. बढ़े तथा बीचों बीच वैभवशाली व जयपुर आत्मनिर्भर कॉलम या भारत जयपुर का स्तंभ निर्माण करें। 145 फीट ऊंचा है जय हिंद। और उधर राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में धीरे धीरे बढ़ता हुआ कारों का काफिला और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन। Honorable President, Srimati Draupadi Murmu ji, respected Sri Ramnath Kovind ji, ऐतिहासिक अवसर, Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi ji, Speaker of Lok Sabha
देश की प्रथम आदिवासी महिला ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है, पदभार संभाला है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आगमन। नमस्कार। Madam President, you have just addressed the members of the Parliament. I wish to read a few paragraphs from the English version of the address, and the rest may be considered as read in view of the time constraint. I express my heartfelt gratitude. The head of governance of the largest democracy in the world has arrived here to greet and felicitate the constitutional head of the largest democracy in the world. We have to work at a fast pace in this Amrit Prime Minister Narendra Modi has arrived here from the citizens of independent India. In these 25 years, the path to attain the goals of Amrit Kal will proceed on two tracks: Sabka Prayas or Sabka Kartavya. Everyone's efforts and everyone's duty. The new development journey towards the bright future of India has to be undertaken by our collective efforts following the path of duty. We will be observing Kargil Vijay Divas tomorrow, July 26th. This day is a symbol of both the bravery and the उपराष्ट्रपति restraint of the और Indian राज्यसभा के armed सभापति forces. श्री Today, वेंकैया I नायडू का extend my आगमन। best wishes in advance to the armed forces Shri of the Venkaiah country Naidu and to all the citizens of India. taking his Brothers and sisters, seat next to growth and progress the mean Prime Minister. continuously marching ahead. But There are equally some important is very few awareness family about members also one's of past. the new president here in the Today, audience. when the world is talking about People have sustainable come from her village, Sustainable some of them, very planet, few, small the role number of of India's invitees. ancient traditions Our new and president is sustainable a simple lifestyle lady, becomes and more I think important. simplicity is going to be her strength. I was born in the tribal tradition which has lived in harmony with the nature for thousands of years. I have realized the importance of forests and water We bodies have in the audience my life. BJP MLAs from Mayurbhanj We district. take necessary resources from also nature have and serve nature with equal union reverence. ministers, This sensitivity has become a global members of imperative parliament, today. I'm happy that India is guiding the world to make in the field of environmental protection. President Brothers and sisters, in my Draupadi life so Murmu's far, day all I the have more realized special. the meaning of life only through public service. There is a line from the poem of Bhim उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश के गण्यमान्य व्यक्ति इस समय राष्ट्रपति भवन में मौजूद हैं। नए राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए that is working for the welfare of the world is far greater than one's own interest. With the spirit of welfare of the world, it always be ready to work. And that's the strength of our With democracy. full devotion and dedication When to live up to the trust you all have reposed in me. Let us all unite our new and president move forward on the path of duty represents with a dedicated spirit to build a all glorious sections of and society. self-reliant India. Thank you. Marginalized and mainstream, and to ensure that the marginalized are mainstreamed. That's the true success of democracy. आपकी आज्ञा हो तो समारोह A democracy that continues to revitalize itself, to grow, and to take in its ambit inclusion as its strongest value. Though there are myriad ways of exhibiting inclusion, today's ceremony, Srimati Murmu's election as the President of India, is a prime example. देश की नई राष्ट्रपति का जीवन, जैसा कि हम सब जानते हैं, संघर्ष का पर्याय है और बहुत बड़ा संदेश है उन सब के लिए जो कभी-कभी संघर्षों में विचलित होने लगते हैं।
संदेश यही है जो उन्होंने अपने जीवन से दिया है कि संघर्ष लगातार करना है और उसके बावजूद कल कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी इसकी चिंता किए बगैर अपना काम, अपना कर्तव्य, उसका निर्वहन करना है। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर देश की आदिवासी महिला को प्रथम नागरिक बनने तक का जो अवसर मिला है वो महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए और हर देशवासी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। माननीय राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की ओर अब प्रस्थान कर रही हैं। A special day also today for the state of Jharkhand. The moment Srimati Murmu's victory was announced, there were celebrations everywhere, and I'm sure today also the state will be celebrating in a very, very special way, and of course a proud moment for all. This is the North Court of Rashtrapati Bhavan. Again, you can see the combination of pink and cream sandstone and beautifully sculpted stone. And the President's limousine, President's cars make their way towards the forecourt, where the Vice President, the Prime Minister, the three service chiefs, and of course cabinet ministers are assembled and waiting for her. The 10th successive president to have been sworn in today, Madam Draupadi Murmu was sworn in as the 15th President of India a short while ago. The oath of office was administered to her by Chief Justice of India, N.V. Ramana. The ceremony has now concluded. In fact, after the oath-taking ceremony, which was followed by a 21-gun salute and the first address of the 15th President, which was then, excerpts of which were also translated in English and read out by Vice President and Rajya Sabha Chairman Mr. M. Venkaiah Naidu. इतिहास में दर्ज होते हुए ये क्षण, ये पल, and as you can see, the 14th President of India, Mr. Ramnath Kovind, 15वीं राष्ट्रपति, Madam President Murmu, along with other dignitaries now leaving for the Rashtrapati Bhavan.